I'm just asking you your opinion. What we can do to sort of dismantle whatever their strategy is. If they are our people, we cannot let these outsiders poison their mind like this, right? Absolutely. And I think what India's success story is today is the fact that India is one of the fastest growing economy today. Economics beats all ideologies, So, and ideologies can never help to build economics. Agreed. दरिद्रता में ऐसे जैसे हिंदी में भी कहा जाता है, दरिद्रता में वो कुरीतियां बाहर आती हैं, तो शायद वो जो हमारी गरीबी थी, जो हम पे इम्पोज करी गई थी, जो हमें लूटा गया था, उसके साथ जो कुरीतियां वापस आई, इन्होंने उसे फिक्स कर दिया, हमारे ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया कि तुम तो हमेशा से यही करते आ रहे थे. लेकिन वो बाहर क्यों आई थी? बिकॉज वी वर मेड टू स्ट्रगल, वी वर मेड टू इवन फेंड फॉर आवरसेल्फ. लाइक अगर बंगाल का हम एग्जांपल देख लें, बाकी जगहों का, लोग भुखमरी से जी रहे थे, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम? करेक्ट, है ना. दे विल बी, क्योंकि जब जो जितनी भी मेरी स्टडी है उसके हिसाब से, व्हेन यू आर दैट पुअर, the first building block that you want to save is your own family. Nobody else matters. As poor you go, as important your family becomes. Because you cannot think beyond that at that time. क्योंकि अब तुम अपनी फैमिली को ही खाना नहीं खिला पा रहे हो, तो फिर दूसरों के बारे में कैसे सोचोगे? Correct. So that way people got, I'm assuming, I don't know obviously, मेरा assumption है कि people must have gotten greedy, people must have gotten selfish at some point or another, because we were struggling so much. But that was not how it was always, like from eternity, like they portray it, like they project it on us. In fact, it was quite the opposite. Exactly. The truth is that Hindus in general were so giving. उनके अंदर वो एक दान का जो हमारा एक धर्म है, it was existent even in all of that struggle, in all of that poverty. And the British used to call it like a Malthusian principle, कि भाई stop helping people. They would literally make it punishable अगर आप किसी को help कर रहे हो during the famines or during the जब इतनी गरीबी छा गई थी during the British rule. But people were always helping each other. Even सिक्खी में भी कहा जाता है, मैंने उनसे निडर सिंह जी से सुना था कि धर्म का मूल है दया और दान, जो कि उन्होंने वेद से उठाया है सिखों ने. Yes. तो अब हम तो 5000 साल से कंटिन्यूसली ये बात बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, as you say. Yes. So we had a beautiful social model, right? तो especially जो ये जाति, जिसको इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है जातिवाद बना के, लेकिन जो हमारी जो जाति की जो एक कॉन्सेप्ट थी कि भी क्लस्टर्स में आप जी रहे हो, not like you're not atomized as an alone person. आप एक समूह हो और सबको साथ लेके चलते हो, उसमें लीडर्स भी हैं. It was the first support system, I am assuming. It was absolutely. After the family as a basic unit, and then you have the extended joint family, and then you have your biradari. It is like saying कि तू अपने परिवार में क्यों रह रहा है? अरे परिवार में तो रहेगा कोई भी, क्योंकि वो मेरी फैमिली है. It is my extended community. क्यों मैं community में क्यों? But मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं दूसरी community को जाके I'll destroy, I will annihilate them, like you are saying. But I'm living in my community, they are my people. That's such an important point you make. Because हमारे जो society रही है, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है जैसे शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम वॉर्स हुए हैं, या प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथलिक वॉर्स हुए हैं. उस तरह से हमारे यहाँ कभी एक जाति ने दूसरी जाति पे इस तरह के हमले किए नहीं है, फुल फ्लेजेड. कभी ऐसा नहीं हुआ है. राज्य के लिए कोई लड़ रहा हो, that is different thing. That is a whole different thing. वो तो किंगडम, जो किंग से लड़ते थे, उसमें भी ऑब्वियसली पूरे धार्मिक वेज होते थे. ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सुना. हमारे तो कोई एग्जांपल नहीं है कि प्रजा को हार्म किया गया हो आपस में. See, you bring up really good points because हमारी, in fact that's a whole different discussion. But हमारी society में, जैसे Megasthenes had come to India and all, he said लोग, kingdoms fight with each other. लेकिन soldiers will fight, they will have rules कि ये टाइम से ये टाइम fight करना है. It's almost like a cricket match, test cricket match. So they will fight, they will not let आपका जो मतलब खेती है, खलियान है, जो farmers हैं, जो women हैं, children हैं, उन पे कभी attack. That was a big no-no, like for entire Indian history. Yes. That was a big no-no. मतलब obviously after Muslim invasion started, तो तब भी इंडियंस ने तो ऐसा नहीं करा ना. वो लोग ये कर रहे थे, they were trying to protect it.
Yes. वो डिफरेंट एंगल है, बट हमारे नेटिव धार्मिक किंग्स ने तो कभी ऐसा नहीं करा, कभी ऐसा नहीं किया. सो ये हमारा जो एक ऑल्सो आई हैव डन अ रिसर्च पेपर ऑन दिस टॉपिक कि रेप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर. सो आप देखोगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि यू कैन टेक अ वुमन एज अ सेक्स स्लेव, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है ऐसा लिखा हुआ है. और आपको तो पता है कि कुरान में तो मालिक गनीमत का कॉन्सेप्ट है ही, तो वो कॉन्सेप्ट है. लेकिन हमारे यहाँ पे जो धार्मिक टेक्स्ट हैं, जो क्षत्रिय टेक्स्ट हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है कि एंड नेवर एवर दिस women, the degradation of women was considered the biggest sin. तो कोई भी ऐसे आप केसेस नहीं देखोगे कि वॉर हो रहा है तो वो उसकी women को उठा के ले तीन जा रहे परमधर ही हैं. क्षत्रिय के ये होते थे कि नारियों की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा, ब्राह्मणों की सुरक्षा. Yes. ये तीन परम धर्म थे. इसके आगे तुम कुछ कर रहे हो वो तो फिर एक्सेप्टेबल ही नहीं. अगर इन तीनों के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो वो तो पॉइंट ही नहीं, मतलब ही नहीं होता कि हम ऐसा या हमारे लोग ऐसा कुछ करते. बिल्कुल नहीं. और फिर देयर इज वन केस वेयर राणा प्रताप के जो बेटे हैं अमर सिंह, हैव यू हर्ड ऑफ दैट? हाँ, तो वो रहीम यार खान के बेटे उनकी विमेन को वो ले आए थे किडनैप करके कि ये लोग ऐसे ले जाते हैं, तो महाराणा प्रताप ये लोग ले जाते हैं तो व्हाई डोंट वी आल्सो डू दैट, है ना. तो व्हाट हैपेंड इज दैट राणा प्रताप सेड फिर हमें उनमें फर्क क्या हुआ, राइट? एंड ही टोल्ड देम कि तुम अपने आप इनको रिटर्न करके आओ, इज्जत से. और फिर अमर सिंह ने राखी बंधवाई उनसे और फिर ही रिटर्न देम. एंड रहीम यार खान सेड दैट ये अकबर को उन्होंने कहा कि आप तो देवताओं से लड़ रहे हो, आप छोड़ दो. एंड ही बिकेम अ कृष्ण भक्त आफ्टर दैट. यस, रहीमन धागा वो वाले शायद वो सब उन्हीं की है ना, वही वाले रहीम है. वही है क्या? If I'm right, yes. I'm not sure He was about the that. one who turned to saint later on. He turned into Krishna Bhakt, that I know. और फिर रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो ऐसे करके कुछ है ना, एक बार टूटे जो गांठ पड़ जाए. I think he was the same person who wrote that, right? Wow, I didn't know that. So that's interesting. But the fact is कि हमारे जो एक principles थे, जो morality थी और जो धर्म का concept था, वो हर क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग था. हर एवरीवन सॉर्ट ऑफ न्यू, जैसे दान धर्म है या दया धर्म है, या दे न्यू दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. इवन मीनाक्षी जी एक जगह बताती हैं, शायद 7th या 8th सेंचुरी का, वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा की बात कर रही थी, जो कि हमारे यहाँ अगेन ऐसा तो नहीं होता था कि बुद्धिस्ट कुछ बन रहा है तो उसमें जैनिज्म का एलिमेंट नहीं होगा या हिंदुइज्म का एलिमेंट नहीं होगा, सब कंबाइंड होता. तो उसमें वो बताती है कि उसमें जो चीजें आई हुई है ना, वो अलग अलग कम्युनिटीज से आई हुई हैं. और उसमें लिखा है कि दिस कम्युनिटी, आई एम फ्रॉम हेयर, मैं ये दान कर रहा हूँ, ये वाली मूर्ति मैंने बनाई है, ये वाली मूर्ति मैंने बनाई है. मीनाक्षी जैन जी के एक, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली क्या रेफरेंस दिया था. सो इट ऑल्सो शोज, वो भी यही पॉइंट शो करने की कोशिश कर रही थी. ऐसा कुछ नहीं था जो हमें दिखाया जाता है कि लोग आपस में, है ना, कि एक सौहार्द नहीं था लोगों के बीच में. ऑलवेज था वो, लोग मिल के काम करते थे. मंदिर भी जो बनते थे वो सब कम्युनिटी मिल के बनाती थी. यस.